नाही कश हौ नाही तिस आहे ना मोरा। अवसर लज्जा राख ले हो। सदना जन तोरा। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल दसां ही पातशाहियां दी आत्मिक जोत गुरगद्दी ते विराजमान चबर छत्र तखत दे मालिक जाहरा जहूर हाजरा हजूर बाणी दे बोहित नाम दे जहाज राजान राज पहानान पहान देवान देव उपमा महान। धन 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 श्री महाराज जी दी परम पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत वडभागी हो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बख्शिश किरपा मेहरामत सदका बाला प्रीतम 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के पावन मुबारक अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहब विखे सजे हुए अमृत वेले दे दीवान की आप हाजरी पर रहे हो। सद बलिहारी तिन्ना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवावें प्रभ मथा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपनी मुबारक रसना तो बचन करते हैं, मैं ऐसे गुरु के सिखा तो सदा बलिहार हाँ जड़े हरि दी परमेश्वर दी वाहिगुरु दी कथा सरवण करते हैं। सद बलिहारी तिन्ना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवावें प्रभ मथा। जेड़े अपने मालक दे अगे नतमस्तक हुंदे हन आत्मिक जीवन के अंदर वो पूरी वडियाई पूरी बख्शिश प्राप्त करते हैं। तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की चल रही बाणी की लड़ीवार विचार विचों आप जी ने मारू राग के अंदर तीसरे पातशाह धन गुरु अमरदास महाराज जी की पावन रसना तो उचारण की हुई वार विचों 12वीं पौड़ी अते नाल लगते हुए 2 श्लोकों का पाठ आप जी ने सरवण किया है। 22 पौड़ियां हैं इस वार दियां और 47 श्लोक हैं। वार दियां सारियां पौड़ियां गुरु अमरदास महाराज जी दियां उचारण कीतियां हुई हैं और जिहड़े श्लोक हैं ये जिथे गुरु अमरदास महाराज जी के उचारण किए हैं उत्थे सतगुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे गुरु रामदास महाराज जी दे और 5वें पातशाह धन गुरु अर्जन देव जी महाराज के उचारण किए हुए श्लोक भी इन्हां पौड़ियां दे नाल 5वें पातशाह धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी के आदि स्वरूप की संपादना करन लग्गियां इन्हां पौड़ियां दे नाल उस श्लोक दर्ज किए। असीं सब जानते हाँ कि सारियां वारां मूल रूप के अंदर पौड़ियां हुंदियां सन। पौड़ियां दे नाल जोड़ के जिहड़े श्लोक हैं ये गुरु अर्जन देव जी महाराज ने संपादित किए।
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ 12ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਨ, ਪੌੜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਸਾਖਤੀ, ਦਰਗਹਿ ਸੱਚ ਕਬੂਲ। ਸਾਹਿਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਨਾ ਭੂਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਸਾਖਤੀ। ਹੁਕਮ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰਚੀ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪਵਾਈਐ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮਿਟੇਗੀ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅਵੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਵੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸੇ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਸਾਖਤੀ, ਸਾਖਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਣ ਆਉਣਾ, ਜੋੜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਦਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਤਰ ਕੰਨ ਜਿਹਵਾ, ਇਹ ਸਵਾਸ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੁੱਤਾਂ ਤੇ ਥਿੱਤਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੇ ਆਇਆ। ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੇ ਆਇਆ। ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ ਜੀਓ ਉਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰਲੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਦੀ ਵਿਸਾਰਾਂ ਨਾ, ਕਦੀ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰ ਦੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਾ। ਕੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਜਪਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਭਾਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਥ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਭਾਲ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਤੁਰ। ਤੂੰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਰੇਂਗਾ, ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇਂਗਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇਂਗਾ, ਰਹੇਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆ ਹੀ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਕਦੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਆਵੇ। ਚਾਕਰ ਲੱਗੈ ਚਾਕਰੀ, ਜੇ ਚੱਲੈ ਖਸਮੈ ਭਾਏ। ਖਸਮੈ ਭਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ ਦੇ ਭਾਉ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ। ਚੱਲਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਚੱਲਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਚਰਨ ਚੱਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਿਹੜਾ? ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਮਾਰਗ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ, ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਕਰਮ, ਰੱਬੀ ਭਾਉ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਕਰ ਲੱਗੈ ਚਾਕਰੀ, ਜੇ ਚੱਲੈ ਖਸਮੇ ਭਾਏ। ਹੁਰਮਤ ਤਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ, ਉਹ ਵਜੋਂ ਭੀ ਦੂਣਾ ਖਾਏ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਆਪਣੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੌਸ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ, ਨਾਲੇ ਗਾਰਬਵਾਦ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ, ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਦਲੀਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ, ਚਤਰਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੱਸਦੇ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਚਤਰਾਈਆਂ, ਇਹ ਸਿਆਣਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ,
अपने बॉस के अगे नहीं चल सकदियां। जिस दी सारी रचना है, जिस मालक की सारी सृष्टि है, उहदे नाल बंदा गर्भ वाली बात करे, आपा जतावे, मैं जतावे, मेरी बुद्धि ये है, मेरी सियाणप ये है, मेरी चतराई ये है, तो फिर मालक नाल नहीं बन सकती। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इस करके लिखिया है बई हुक्म रजाई साखती दरगह सच कबूल। दरगाह के अंदर तो सचियार जी भी कबूल पैंदे ने। सच का जीवन बतीत करने वाले बंदे मालक के दर के उत्ते ढोई प्राप्त करते हैं। फिर सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं साहिब लेखा मंगसी दुनिया देख ना भूल। सतगुरु सच्चे पातशाह जी सानू अलर्ट करते हैं, सानू सावधान करते हैं। भाई उस मालक की दरगाह के अंदर साहिब ने तेरे को लेखा मंगना है। तेनू जिहड़ा टारगेट दिता, अजकल कंपनियां दे अंदर जिहड़े बच्चे जॉब करते हैं उन्होंने पुछ के देखो, उन्होंने हर हालत के अंदर वो टारगेट अचीव करना पैंदा, पूरा करना पैंदा। फिर उन्होंने अपने महकमे दे विचों जिहड़ियां वो हर तरह दी सहूलतां मिलदियां ने। इसे तरीके सानू भी मालक ने एक टारगेट दिता है। सानू भी मालक ने इस देही दे अंदर आके जो वाहिगुरू ने सानू विश्वास दिते है, बचपन तो लैके बुढ़ापे तक जिन्ने मालक ने सानू सुवास दिते ने, सानू प्राण दिते ने, ये सब मालक ने सानू एक तरीके दे नाल अपने वल्लों ये पूंजी दे के शरीर रूपी हट्टी के उत्ते व्यापार करने वास्ते भेजिया। भाई जाओ सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह निभै खेप तुम्हारी। दरगाह के अंदर लेखा होना है, दरगाह के अंदर अकाउंटेबिलिटी है तेरी। इस गल नूं कोई बंदा कदी भुले ना, कदी इस नूं हल्के विच ना लवे, कदी इस गल नूं नज़रअंदाज ना करे। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते दुनिया देख ना भूल। ये गल भुल ना जाई किते, क्योंकि आम तौर के उत्ते बंदा पता की कहता, ये जग मिठा अगा किने डिठा। ये जग मिठा, ये संसार ही मिठा, अगा किने डिठा। अगा किने देखिया जी। पर जे गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं आपां गुरु मनदे आ, गुरु की बाणी नूं अपना गुरु मनदे आ, ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बाणी दे अंदर एक बार नहीं कई बार कहा कि भाई उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे हुक्म दे अंदर जदों तेरे सवास मुक गए, तेरा खाण पीण का टाइम खत्म हो गया, काम कार दा धंधे का काम मुक गया, अमल सिरानो लेखा देना, आए कठिन दूत जम लेना, क्या तैं खटिया कहाँ गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया। परमात्मा ने तेनू सदा भेज देना, अमलों का समा खत्म हो गया, अमल सिरानो लेखा देना, हुण लेखे का टाइम आ गया। आए कठिन दूत जम लेना, वो डाढे जम दूत जड़े ने वो अखीर बंदे नू लैण आ जांदे। क्या तैं खटिया कहाँ गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया। चल पई हुणे, हुण देखना यह है भी तू इन्हां सवासां दे नाल की खटिया ही ते की गवाया। सतगुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के तुखारी राग के अंदर एक बचन है। सतगुरु कहते हैं खुली गांठ, खुली गांठ उठो लिखिया आया राम। लिखिया आया तो भाव जदों आर्डर निकल जाते, जदों कोई चीज़ लिख के दे दी जाती है, लिखिया आया रब ने लिख के भेजता। खुली गांठ सवासां की गंढ खुल गई, उठो चल पई हुण तुर पै। जदों कोई बंदा किसी नूं लैण आउंदा तो उस वेले कहंदा चल पई हुण उठ चलीए। इसे तरीके रब वल्लों जदों परमात्मा वल्लों सदा आ जाना, आया हकारा चलन हारा। गुरु अमरदास महाराज कहते रामकली राग के अंदर सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पड़पोतरे बाबा सुंदर जी की बाणी है सद। सद का अर्थ ही है सदा। एक सदा जदों मालक के घर वालों आ जाता है, सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने खुली गांठ उठो लिखिया आया राम।
रस कस सुख ठाके। ठाके का अर्थ है रोक लो। जिवें असीं किसी बंदे नूं बाहर रोकदे ने भी इत्थों देख लो इहनूं, फिर की है मालक का हुक्म हो गया, हुण रस कस सुख ठाके। खाना पीना बंद, संसार दे सुख बिलास बंद। रस कस सुख ठाके बंद चलाया राम। बंद चलाया तो राम, बंद चलाया का मतलब यह है भी बंदे नूं बन के, क्योंकि बंदे की अक्सर मर्जी नहीं होंदी। जिद्दां जे पुलिस वाले आ जाण लैण ते चक के जिप्सी च पा लेंदे, बंदा जिन्नी मर्जी ना नुक्कर करे क्योंकि आर्डर निकल आए। बंद चलाया राम। महाराज कहते आप ही ने भोग भोग कह कोई भसमड़ भौर सिधाया। वड्डा हुआ दुनीदार गल सकल बंद चलाया। एक थां ते लिखिया महाराज ने गुरमुख जन्म सवार दरगे चलिया। उन्होंने नहीं चलाया जाता। संसारी बंदे नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने बंद चलाया, बन के सुट लिया जाता। बंद चलाया जां प्रभ पाया, ना दिसै ना सुनीए। देखो ये महाराज की बाणी है ਜਿਹੜੀ रब के दर के उत्ते साडे नाल बतीत होनी है। महाराज ने बाणी विच सानू सब तो पहला सुना दी है। परमेश्वर के द्वारे जो होए बतीता सो नानक आख सुनावै। नानक तो वही गल कहंदा जो परमेश्वर के घर साडे नाल कल नूं बतीत होनी है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने बंद चलाया जां प्रभ पाया। जदों मेरे मालक नूं चंगा लग गया तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ना दिसै ना सुनीए। फिर बंदे नूं ये देखण सुनन वाला ये काम खत्म हो जाता। फिर दुनियावी तौर तो साडा संबंध जिहड़ा वो टुट जाता। फिर साडी एक नवीं जिहड़ी है डायरैक्शन शुरू हो जाती है, नवां रस्ता शुरू हो जाता। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते आपन वारी सब से आवे, पक्की खेती लुणी है। अपनी अपनी वारी है, आपन वारी अपनी अपनी वारी, सब से आवे। सब से आवे तो भाव मतलब सब दी आनी। राणा राव न को रहे रंग न तुंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई न बंदा धीर। जो उपजियो सो बिन सखै परो आज के काल, परसों आज या कल। वारी है, एक चाल है एक चालस है, सब अपनी वार। एक चले गए एक ने चले जाना, अपनी अपनी वारी है, अपनी अपनी टर्न है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं आपन वारी सब से आवे, पक्की खेती लुणी है। जिहड़ी खेती पक जाए उन्हें वड्ढना ही पैना। जिस दी आरजा खत्म हो गई मालक दे हुक्म दे अंदर सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं जाना ही पैना। तो फिर अगे पता की है, घड़ी चसे का लेखा मंगै। घड़ी चसे का, घड़ी चसे का अर्थ है घड़ी घड़ी का, पल पल का। घड़ी चसे का लेखा लीजै, बुरा भला सौ जिया। हुण अपनी जिंदगी के अंदर चंगियाइयां बुराइयां, वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। पढ़ते असी रोज हाँ, पर उस शिद्दत दे नाल, उस गहराई दे नाल, उस मन की अवस्था दे नाल महसूस घट करते हैं। जिहड़ी चीज़ रोज़ पढ़ी जाओ रूटीन ही हो जाती। जिहड़ी चीज़ रूटीन हो जाए फिर उहदे वाल कई बार बंदे का ख्याल घट ही जाता। वो रस्मी तौर के उत्ते तो पढ़ जाता, पर जिहड़ी चीज़ विचों फड़न वाली हुंदी है वो चीज़ छुड़ जाती है। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं बुरा भला सौ जिया। उस वेले फिर बंदे नूं जिंदगी दे अंदर सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं उस दे कर्मां दा लेखा हुंदा। सबना का दर लेखा होए, करनी बाजों तरया न कोए। सारियां दा लेखा होना। नानक आख्या रे मना, सुनिए सिख सही। वैसे गुरु महाराज तक कभी ऐसी गल कहणगे ही नहीं जो सही नहीं है, पर फिर भी बंदे नूं विश्वास दिवाना पैंदा। नानक आखे रे मना, सुनिए सिख सही।
लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही। परमात्मा ने लैजर के अंदर तेरे कर्मां का हिसाब किताब बिल्कुल लिखिया होया। जेड़े बंदे कहते जग मिठा अगला किन्ने डिठा, महाराज ने उन्होंने वास्ते बिल्कुल पूर्ण तौर के उत्ते अनाउंसमेंट की है। आप रोज गुरुद्वारियां च अनाउंसमेंट सुनते हैं। ये गुरु महाराज की एक अनाउंसमेंट है जिहड़ी हर बंदे नूं कान खोल के सुननी चाहिए है। फलाने वेले की फलानी थां दे उत्ते की हो रहा है। गुरु की बाणी विच भी बड़ियां अनाउंसमेंट्स ने, गुरु की बाणी विच भी बड़ियां सूचनावां दित्तियां जा रही हैं। जिवें एयरपोर्ट के उत्ते रेलवे स्टेशन के उत्ते एक माइक हर वेले लगा हुंदा। जिहड़ा बंदा रेलवे स्टेशन ते बैठा, जिहड़ा एयरपोर्ट ते बैठा है, जदों अनाउंसमेंट हुंदी है वो सुनदा है। उन्होंने पता मेरी फ्लाइट कदों है, किहड़ी फ्लाइट लेट हो रही है। इस तरीके जदों गुरु महाराज गल करते हैं ना, इदां सुनिया करो, क्योंकि साडी भी कल नूं फ्लाइट है, साडी भी कल नूं डिपार्चर है। महाराज ने जान नूं यही कहा ना, जदों बंदा इथों जांदा उन्होंने कहते चलाना करके, चलाने का अर्थ ही है भी चले जाना। जिन्हों असीं मरना कहने हैं, महाराज उन्होंने डिपार्चर कहते हैं, उन्होंने जाना कहते हैं। जिन्हों असीं जन्म कहने हैं, महाराज उन्होंने आना कहते हैं। ना सानू ये पता असीं आए कित्थों, ना सानू ये पता जाना। सिर दे उत्ते तैयारी कोई नहीं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी सानू उस गल लई मैंटली प्रिपेयर करते हैं। नानक आखे रे मना सुनिए सिख सही, लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही। पुराने समय के अंदर वहीयां सी, अजकल कंप्यूटर है। कंप्यूटर के उत्ते जिहदा नाम पाओ वह सारा है हिसाब किताब बैंक वाले कढ़ देंगे। इस तरीके तेरी जिंदगी दे भी पल पल का घड़ी घड़ी का उत्थे मालक की दरगाह के अंदर हिसाब किताब। मैं बार बार इस करके कह रहा, कई बंदियां दे मन के अंदर अजे गल लगती नहीं है। फिर सानू गुरसिख खवाण का कोई हक नहीं है। जे गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकदे हैं, जे बाणी गुरु गुरु है बाणी कहने हैं, तो ये अंदर कोई ऐसी गल तो है नहीं जिहड़ी बंदे नूं समझ ना लगे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने, लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही, तलबा पौसन आकियां बाकी जिन्ना रही। अजराइल फरिश्ता होसी आए तई, उथे अजराइल फरिश्ता मौत का फरिश्ता, को जमदूत कह लो, बिल्कुल है। होसी आए तई, तई तैयार होके खड़ा, बस उन्होंने आर्डर चाहिए। तलबा पौसन आकिया बाकी जिन्ना रखी। बाकी का अर्थ है जिन्हों का अनपेड अकाउंट है, कोई जिन्हों का अजे बैलेंस क्लीयर नहीं है, वो कहते बाकी रह गया। धर्म राय जब लेखा मंगै, बाकी निकसी भारी। बाकी निकसी भारी, बहुत कुछ ऐसा है जिहदा असीं हिसाब किताब नहीं दे पाना। बड़ियां गल्लां ऐसियां ने जिथे असीं फस जाना है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते आमन जान न सूझई, भीड़ी गली फई। उस भीड़ी थां दे उत्ते असीं फस जाना जिथों निकलण दा कोई राह नहीं होएगा, जिथों साडा कोई बचाव दा ढंग नहीं होएगा। धर्म राय जब लेखा मंगै, बाकी निकसी भारी। पंच किरसानवा भाग गए, लै बांधिओ जियो दरबारी। जीव आत्मा नूं दरबार च लैके बन लिया। मत समझो ये कहानी खत्म है बंदे दी शरीर त्यागण तो बाद। कहानी तो शुरू है, असल कहानी तो शुरू ही उदों होनी है। अजे तो साडी कहानी है, अजे तो साडी मर्जी है, पर एक दिन साडी मर्जी बंद हो जानी है, फिर असी किसी की मर्जी विच होना। तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी गुरु नानक देव जी महाराज कहते साहिब लेखा मंगसी, चार गवाया हंड कै, चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया, तू आयो केड़े काम। देखो सतगुरु सच्चे पातशाह जी बाणी विच रोज सानू कहंदे अमृत वेले की संभाल कर, नितनेम कर, दसां नौवां दी हक दी सच दी कमाई कर, मन करके हिरदे नूं पवित्र कर, कर्मां नूं पवित्र कर, गुरु दे लड़ लग, गुरु वाला बन, पीवो पौल खंडे धार होए जन्म सुहेला। रोज कहंदे महाराज।
मन करके, कर्मा करके, सुरती करके, बिरती करके पवित्रता धारण कर, गुरु दे लड़ लग के शुभ कर्म कर। ये बंदे नूं हर रोज पुछना चाहिए अपने आप नूं, जवाब यस विच है कि नो विच है। जे नो विच है तो फिर असी बहुत वड्डी मुश्किल विच फसन वाले हैं, बड़ी वड्डी मुसीबत सर ते पैण वाली है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इस करके समय रहंदियां सानू बाणी दे अंदर सुचेत कीता है, राम सिमर पछताहेगा मन राम सिमर। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं पापी जीड़ा लोभ करत है आज काल उठ जाएगा, जो जम आए केस गए पटके तां दिन कश ना बसाएगा। सिमरन भजन दया नहीं कीनी तो मुख चोटां खाएगा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने किसी गल्लों भी बंदे दे मन दे अंदर कोई शंका रहन नहीं दिता। सतगुरु सच्चे पातशाह जी बाणी दे अंदर जीव नूं समझाते ने, भाई मालक दे घर हर बंदे दा लेखा है और मन करके इस गल नूं सुचेत हो, इस गल नूं समझण दा यतन कर। जान बुझ के जिहड़ा बंदा अखां बंद करके बैठा रहिंदा, जे कबूतर बिल्ली नूं देख के अखां बंद कर लवे, क्योंकि असी साडी आम तौर दे उत्ते संसारी बंदियां दी अवस्था है कि आपां किसी गल नूं इहो जी अध्यात्मक गल नूं बहुता सिंसीयरली नहीं लैंदे। बहुता सिंसीयरली ना लैण करके साडी जिंदगी दे सवास जिहड़े ने एक दिन मुक जांदे ते फिर बंदे नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने पछतावा हुंदा। उत्थे जिहड़ा हिसाब किताब रह जाएगा, महाराज कहंदे हन फिर जिंदगी दे अंदर भाई तैनूं बहुत वड्डा घाटा पएगा। साहिब लेखा मंगसी दुनिया देख ना भूल। एमनाबाद के लोगों नूं गुरु नानक देव महाराज जदों उत्थे पहुंचे ते जिवें रब नूं भुला के ना हौमे हंकार दे अंदर भाई मरदाने नूं गुरु नानक सच्चे पातशाह जी नूं घटिया पद्धर दे मजाक करदे, विआहां शादियां दे रंगां विच ऐसे रंगे होए, दौलत दा नशे ने ऐसी मत मारी हुई। ते सतगुरु पातशाह जी ने आख्या सी जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, पाप की जंज लै काबलों धाया जोरी मंगे दान वे लालो। शर्म धर्म दो छप खलोए कूड़ फिरे प्रधान वे लालो, काजियां बामणा की गल थकी अगद पढ़े शैतान वे लालो। भाई लालो जो मैनू दिस रहा है ना, जो दिस रहा जो मैनू महसूस हो रहा है वो ये है भी इन्हां दे उत्ते बाबर ने जम बन के आना और इन्हां नूं इन्हां दे कीते हुए कर्मां दी सज़ा तो इत्थे ही दे देनी। फिर जिवें एमनाबाद दीयां गलियां दे अंदर लाशां दे ढेर लगे, जिवें नालियां खून दीयां भर के चलियां, जिवें उन्हां दे जिन्हां ने 36 किस्म दे मालक नूं भुला के हार श्रृंगार कीते सी, जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए सिधूर ते सिर काती मुन्नियन गल विच आवे धूड़। महलां अंदर होंदियां हुण बहन ना मिलन हदूर। 1 लख लैण बैठियां 1 लख लैण खड़ियां, गरी छुहारे खांदियां मानण से जड़ियां, 3 गल सिलकां पाइयां टुटण मोतसरियां। महाराज ने फिर एमनाबाद के उत्ते जिहड़ा बाबर दा हमला होया, उस हमले विच जिहड़ी वो एमनाबाद के लोकां दी दुर्गति हुई, महाराज ने बाणी विच लिखी। तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते दुनिया देख ना भूल, मत देख भूला विसरै तेरा चेतना आवे नाओ, मोती ता मंदर उसरै रतनी ता होए जड़ाओ, कस्तूर कंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ, मत देख भूला विसरै तेरा चेतना आवे नाओ। सतगुरु कहते उस अकाल पुरख वाहिगुरू के नाम नूं कदी भुला ना, इस गल नूं भुला ना कि जीवन के अंदर मिले हुए मालक के दिते हुए सुवास ने ते इन्हां सुवासां दे नाल मैं वो चीज़ इकट्ठी करनी है जिहड़ी चीज़ लैके मालक दे घर जावां ते मैं कबूल हो जावां, मैं प्रवान हो जावां। रे रे दरगह कहे न कोऊ, आओ बैस आदर सब देऊ। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते लेखा देना सुहेला, जाओ दिल सूची होए, उस साचे दीवान में पल्ला ना पकड़ा कोई। लेखा देना सौखा है,
कोई औखा नहीं है। जिस बंदे ने जीवन के अंदर मालक नूं कदी विसारिया नहीं है, गुरु की बाणी ते गुरु के बाणे का धारनी है, दसां नौआं की किरत कमाई की है, नाम जपिया, वंड छकिया, मालक के दर के अंदर उसका लेखा नहीं है। धर्म राय नूं हुक्म है, वह सच्चा धर्म विचार, दूजे भाए दुष्ट आत्मा ये तेरी सरकार। अध्यात्मी हर गुण तास मन, जापै एक मुरार, तिन की सेवा धर्म राय करे, धन सवारनहार। उन्हां दी धर्मराज सेवा करता है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं, जिन को कृपा कर जगजीवन, हर उर धारियो मन माझा, धर्म राय दर कागद फाड़े, जन नानक लेखा समझा। भाई तेरा लेखा निबड़ गया, क्लीयर है, फ्री है तू। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते दिल दरवानी जो करे, दरवेशी दिल रास। जिहड़ा दिल की दरवानी करदा, दिल की चौकीदारी करदा, अपने आपे दी अपने अंदरों संभाल करते रहना, अपने अंदरले नूं अपने आपे नूं रितां प्रति रोज़ पड़चोलना, रोज़ गुरु के शब्द के शीशे अगे अपने मन नूं देखना, जिहड़ा बंदा करदा रहिंदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते इश्क मुहब्बत नानका लेखा करते पास। जिन्हों रब नाल इश्क है, रब नाल प्यार है, वह लेखा रब कोल पहुँच गया। जदों महाराज गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने करप्ट जिहड़े मसंद सन उन्होंने सजावां दित्तियां, दाड़ियों फड़ के लियाउंदे गए। एक भाई फेरू सी, जिन्हों महाराज ने आख्या सी, भाई फेरू तेरी सच्ची दाड़ी, भाई फेरू तेरी सेवा गाड़ी, भाई फेरू गुर तुद बलिहारी। उन्हें अपनी दाड़ी आप ही फड़ ली, किसी की हिम्मत नहीं पई उसकी दाड़ी फड़े। तो किसी ने आख्या भाई फेरू का कोई लेखा नहीं जी, पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आख्या सी इहदा लेखा मेरे कोल है, मैं इहनूं जानदा। इन्हें अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया, जिन्नी माया संगतां वल्लों मिली वो इसने धर्म के लेखे लाई है, गुरु लेखे लाई है, गरीब के लेखे लाई है। यहदी सच्ची दाड़ी है, यहदा लेखा गुरु पातशाह कहते मैनूं मिल गया, मैनूं पहुँच गया। इस तरीके धर्मराज नूं लेखे की जरूरत नहीं है, रब कोल उन्हां दा लेखा पहला पहुँच गया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं इश्क मुहब्बत नानका लेखा करते पास। वो तो फिर सीधा डायरैक्ट उन्होंने रब की गल है, धर्मराज नहीं विच आंदा उन्होंने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते अलगो जोए मधुकड़ो, सारंग पान सुभाए, हीरा हीरा बेदिया नानक कंठ सुभाए। उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। अलगाओ जोए मधुकड़ो, अलगाओ तो भाव है जिहड़ा अलग, जिहड़ा डिटैचड है, जे माया विच रहिंदियां होइयां भी जिहड़ा सुरत करके मालक दे चरनां विच लिव लाउंदा है। सारंग पान सुभाए, जिन्हें सुभाए तो भाव हर थां दे उत्ते सारंग पान परमेश्वर नूं देखिया, वाहिगुरू नूं तक्किया। हीरा हीरा बेदिया नानक कंठ सुभाए। सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे ने वो प्रभु प्रेम दी राही प्रभु दे गल नाल लगा होया है। वो इस मनुखा जीवन के अंदर भी रब तो कदी दूर नहीं है, मालक तो कदी विछड़िया नहीं है। गुरप्रसादी जिन्ना लिव लागी तिन विचे माया पाया। ਉਹਦੇ सामने सारा पसारा रब दी होंद है। जदों असीं बचन पढ़ते सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थी आराम। ये जीवित अवस्था है, ये जीवंदे दी अवस्था है। गुरु के शब्द दीयां किरणां दे नाल मन जिहड़ा कठोर पहला बर्फ वर्गा सी, हुण पानी हो गया, जोत स्वरूप हो गया। पहला ये पदार्थ रूप सी, हुण ये परमेश्वर रूप हो गया। जिहड़ी साडी सूरत है उस महासुरत के अंदर लीन हो गई, जिन्हों महाराज ने बाणी विच इदां भी लिखिया, ओए जो बीच हम तुम कश होते, तिन की बात बिलानी, अलंकार मिल थैली होई है ताते कणक बखानी। जिवें सोने के गहणियां नूं ढाल के डली बन जाती है, वो सोना ही बन जाता है। ओए जो बीच हम तुम कश होते, तेरे ते मेरे दे अंदर परमात्मा जिहड़ी चीज सी, तिन की बात बिलानी, वो तो गल ही खत्म हो गई। हुण
अलंकार मिल थैली हुई है ताते कणक बखानी प्रगटियो जोत सहज सुख शोभा बाजे अनहद बानी। अंदर अनहद नाद चल रहा है, अंदर प्रकाश है, अंदर विवेक बुद्ध है, अंदर चानन है, ब्रह्म दीसा है, ब्रह्म सुनिए एक एक बखानी है। आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिए। आप करता आप भुगता आप की कारण किया बिनवंत नानक सोई जाने जिनी हर रस पीया। उन्होंने तो हर पासे मालक दे दीदार ने, वो इत्थे मालक की हजूरी विच है, मालक दे नाल एक मिक है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं जिहड़े गुरमुख जीव हन जिन्हां उत्ते मालक की किरपा हुंदी है वो मालक के चरणों के अंदर लिव जोड़ के इस मनुखा जीवन के अंदर जीवन बतीत करते हैं। तो फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी अगे फिर पौड़ी के अंदर जो बचन करते हैं, 2 श्लोकों तो बाद ये पौड़ी है। पौड़ी गुरु अमरदास महाराज की है, श्लोक दोवें गुरु नानक देव जी के सन। पौड़ी जिहड़ी है गुरु अमरदास जी की है। पौड़ियां सारियां ही गुरु अमरदास जी दियां ने। श्लोक वख-वख जामिਆਂ अंदर उचारण किए गए हैं। ये स्वरूप गुरु अर्जन देव जी ने बनाया, क्योंकि जे रोज़ कथा सरवण करते ये गल्लां कभी भुलनियां नहीं चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी की नितां प्रति कथा सुनने का फायदा होना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब की अंदरली तरतीब, क्योंकि साडे च रिवाज की है, असीं कीता कराया काम भालते हैं, माया दे के सारा कुछ कहने हो जाए, गल बनती नहीं है। गल उदों ही बननी है जदों असीं अपने मन के अंदर सतगुरु जी के पावन स्वरूप नूं वसावांगे, पावन बाणी नूं वसावांगे। सानूं पता होएगा गुरु ग्रंथ साहब महाराज के स्वरूप के अंदर की है। कईयां नूं तां लगदा पता नहीं की शै, वो प्राहुणिਆਂ वांगू रहिंदे गुरु घर भी। गुरु ग्रंथ साहब के नाल उन्हां दी कोई इंटीमेसी नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी के नाल गुरु के स्वरूप के नाल तां सिख दा मन करके इन्नी इंटीमेसी होनी चाहिए, कभी गुरु का शब्द भुल्ले ही ना, विसरे ही ना। तो पौड़ी के अंदर सतगुरु गुरु अमरदास महाराज कहते हैं मनमुख काल व्यापदा मोह माया लागे खिन मैं मार पछाड़सी भाए दूजे ठागे। उचारण करो जी सतनाम, फिर कृपा करो जी सतनाम। मनमुख काल व्यापदा मोह माया लागे। जिहड़ा मनमुख बंदा जिहदी जिंदगी के अंदर मन प्रधान है, मन जिहदे अंदर मुखी है, जिवें असीं कह दिंदे फलानी संस्था का फलाना मुखी है, फलाने स्कूल कॉलेज के अंदर फलाना मुख्य अध्यापक है, इस तरीके साडी जिंदगी के अंदर मुखी जे गुरु है तो असीं गुरुमुखी हाँ, गुरमुख हाँ, तो जे मन है तो मनमुख हाँ। तो सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं मनमुख बंदा मोह माया के अंदर लगा होया है। मनमुख बंदे के अंदर माया का प्रभाव है, ये माया जित हार विसरै मोह उपजै भावो दूजा लाया। जिहदे मन के अंदर संसार की वडियाई, संसार के रसकस, संसार के खाण पान, संसार के शोभा, ये सारिया चीज़ां बहुत चंगियां लगदियां, इन्हां नाल बड़ी अटैचमेंट है। मोह दा अर्थ ही अटैचमेंट। जिहड़ी चीज़ ना मिले असी उस चीज़ तो जे अपने आप नूं विछड़न तो बाद परेशान होइए, दुखी होइए, समझ लेना ये बंधन है, ये मोह है। माया के दायरे के अंदर ये मोह नाल बन के रखती है। जिवें किसी कमरे दे विच बंदे नूं डक लिओ ना तो बाहरों कुंडी ला दो तो बंदा निकल नहीं सकता। ये कुंडी है मोह दी, ये फाइयां ने मोह दियां। इनू महाराज ने चिक्कड़ आख्या, मोह चीकड़ फाथे निगरत हम जाते नानक बां प्रभु पकड़ाए जियो। तित सरवड़ा भैले निवासा पानी पावक तिने किया पंकज मोह। ये पंकज है। दरिया के कंढे जिथे पानी कभी हड़ आया होवे उत्थे मिट्टी दे नाल रल के जिहड़ा चिक्कड़ बन जाता। तो उस चिक्कड़ दे अंदर जिहड़ा बंदा एक बारी फस जाता है उत्थे डिग पैंदा। असी संसारी बंदे जे मोह विच फस गए ना उत्थे डिग पैना। पतत पतत किनू कहंदे? पतत का मतलब जिहड़ा डिग पिया। डिगदा किवें है? चिक्कड़ विच डिगदा जिहड़ा पैर खिसक जाए। कुरिए कुरिए वैद्या तल गाड़ा महरे वेख्या छिट्टड़ थीम दो जाम खिसंदो पैर। तुरना सी रब वाले पासे, इत्थे पैर ही खिसक गया। तिलक ही गए, हुण कित्थे तुरना? हुण तां माया विच डिग पे, हुण तां विकारां विच डिग पे, हुण कुकर्मां विच डिग पे। साडा किरदार कित्थे चला गया?
जिस किरदार के उत्ते गुरु के सिखां नूं माण सी, सिंघां नूं माण सी, खालसाई किरदार अज बड़ी तेजी नाल साडे विच उड़दा जा रहा है। खालसाई किरदार जिहदे उत्ते खालसे नूं माण सी, सिख नूं माण सी, आ गए निहंग बूए खोल दिओ निसंग। सिख की गवाही नूं जज उस वेले उदां ही कबूल कर लैंदा सी भी ये बंदा कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, एक बंदा कभी गलत गवाही दे ही नहीं सकता। जदों मोह विच फस गए, जदों अटैचमेंट विच फस गए, जदों किसी चीज़ के बंधन विच पै गए, फिर साडा किरदार खत्म हो जाता, फिर करैक्टर खत्म हो जाता, फिर नैतिकता खत्म हो जाती है, फिर मोरैलिटी खत्म हो जाती, फिर स्पिरिचुअलिटी खत्म हो जाती। फिर उन्होंने कहने मायाधारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुनई बहु रोल कचोला। बंदा डिगे तो कदे सट लगती ना, जी बांह टुट गई, लत्त टुट गई है जी। जदों मायाधारी बंदा डिगदा है ना पापां दे अंदर, तो फिर वो अन्ना भी हो जाता, तो बोला भी हो जाता, किसी की गल नहीं सुनता। रे मन मूस बिला मैं गर्भत करतब करत महा मुगणा, संपत दोल झोल संग झूलत माया भ्रमत फिरत घुगणा। जिवें चूहा अपनी खुड दे उत्ते बड़ा मान करदा, इसे तरीके संसारी मायाधारी बंदा इन्हां चीज़ां दा, पदवियां दा, शोहरतां दा, पैसे दा, धन दौलत दा, मैल माड़ियां दे मान दे अंदर ही किते गुआचा रहिंदा। पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने मनमुख काल व्यापदा, मोह माया लागे। उहदे सिर दे उत्ते मौत खड़ी है, जम खड़ा उसदे सिर दे उत्ते। काल ने सतगुरु सच्चे पातशाह कहते खिन मैं मार पछाड़ सी भाए दूजे ठागे। उन्हें तो एक सकिंट के अंदर खाली कर देना, उन्हें एक सकिंट के अंदर कखों होला कर देना, पता लग जाना कंगाली की हुंदी है। मनमुख बंदे दे सिर दे उत्ते जदों आ जांदा ना टाइम, फिर बंदे नूं पता लगदा मेरे पल्ले तां कख भी नहीं सी। आ जिन्ने परिवार दे बंदे जिन्हां उत्ते मैं बहुत मान करदा सी, किसे काम नहीं आउणे। ये धन दौलत किसे काम नहीं आउणी, ये वडियाइयां शोहरतां किसे काम नहीं आनियां जिद्दण उत्तों सद्दा आ गया। सिकंदर ने जिहड़ी गल लिखी, कवि ने लिखा जर सिकंदर ने जमा कर कह दिया मैं हूं खुदा, वक्त कज़ा का पढ़ने पर सब लगे होने जुदा। तमाम यूनान के हिकमत गरों से यूं कहा, है कोई मुझको बचाने के लिए अहले वफा। ऐ तबीबो है इस वक्त कोई मौत की दवा, अपनी रैयत वजीरों बेगमों से यूं कहा, है कोई मुझको बचाने के लिए अहले वफा। ढेर दौलत का लगाकर कहने लगे, हो सके तो तू ही मुझको ले बचा। बैद भी इकट्ठे कर ले, डॉक्टर भी इकट्ठे कर ले, लियाओ भी कोई है जो दवाई। अपने रिश्तेदार वजीर बेगमां इकट्ठियां कर लिया, तुहाडे चों है कोई वफादार। तीजा ढेर दौलत दा ला लिया, वो तू ही कुछ कर, हुण सारी जिंदगी तो तेनू कमांदा रहा। फिर उस वेले सिकंदर ने एक गल कही सी, सिकंदर ने यह गल कही सी कि जदों फिर मेरा जनाजा जाए तो उस वेले फिर मेरे हाथ जड़े ने खाली होण। हुण उहनूं महसूस हो गया भी मैं खाली हाँ। पहला तो बंदे नूं लगदा मैं बहुत भरिया, मैं बड़ा ताकतवर हाँ। फिर कहने लगे ये है मेरी रजा। वो कहने लगा सिकंदर कि मेरे जनाजे दे उत्ते हाथ खाली हों कफन से मेरे, ताकि सबको खबर कर दे अंत का ये समा। उन्होंने उस दिन पता लग गया भी मैं जिन्हों सब कुछ समझदा सी वो तो कुछ भी नहीं है। जिन्होंने मैं समझदा सी मेरा बड़ा बड़ा मान है, मान तां दरवाजा बंद करता। ये सारे दरवाजे परमात्मा ने बंद कर देने, किसी पास्यों कोई मदद नहीं आनी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं बंदे तू जिंदगी के अंदर इस गल नूं याद रख, और यह गल हमेशा बंदे नूं याद रखनी चाहिए है। जदों असीं किसी नूं जांदा देखदे असीं तां बहुते की करदे, फॉर्मैलिटी ही करदे, लोकाचारी करदे हैं, सोशल स्टेटस ही देखते हैं, दुनियादारी करते हैं। जिहड़ी चीज़ नाल वो चीज़ देखनी चाहिए है उस सोच नाल देखते ही नहीं। एक दूजे का पिंडा खुरकन ते लगे रहने, छिली जाने, बस पता नहीं लगता भी आखिर सच्चाई की है। महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ गौतम सी, एक दिन उन्हें बंदे का जनाजा देखा, सारी रात नहीं सौ सकिया। उन्हें मौत विचों मौत देखी सी। असीं मौत विचों भी बहुते दुनियादारी देखते हैं, मूँह मलाजा देखते हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने फिर वेला हथ ना आवई जम का डंड लागे। फिर उन्हां दे हथों वेला नहीं आंदा जदों सिर दे उत्ते जम का डंड लगदा। प्राणी राम ना चेतई
मद माया कै अंध कव नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद। फिर जम की फाई पै जाती है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं परमात्मा का नाम बंदा भुल जाता है तो अखीर जो सारे पासों तो सिफर हो जाता फिर कला जम ही आ जाता। पर सतगुरु कहते तीन जम डंड न लग गई जो हर लिव जागे। जागे रोज महाराज की बाणी, रोज महाराज के शब्द, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की बाणी, सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बाणी, भगत रविदास जी की बाणी, जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही, संग चलत है हम भी चलना, दूर गमन सिर ऊपर मरना। आवो मिलो सहेली हो सचड़ा नाम लए हाँ, रोवो बिरहा तन का अपना साहिब संभाले हाँ, साहिब संभाले पंथ निहाले असां भी उत्थे जाना। किसी वाल देख के अफसोस करने नालों चंगा होंदा उहदी थां दे उत्ते अपने आप नूं महसूस करो। जिस दिन अपने आप नूं महसूस करांगे कहत कबीर सुनो मन मेरे यही हवाल होएंगे तेरे। जड़ा ये समझ जाएगा मालक दे दर तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं वह सुरखरू हो जाएगा। सब तेरी तुद छडावनी सब तुदै लग गए। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते तू आप ही मालक छुड़ाण वाला है। इन्नियां कोई बेनतियां प्रवान करनियां जी। होइयां भुल्लां दी खिमा। धन्नवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, सिंह साहब का, आप संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।